अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खदमत है हज़्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, अमरीका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाल लिया है। आइए आज आपको उनसे मुलाकात के लिए ले चलते हैं ओवल ऑफिस। फिर वेख्या ही फरीद पुत मेरियां आउणियां तैनू आख्या ही ट्रंपू चाचा आवे ही आवे, इनू किसे नहीं डक सकना। देख ला फिर, ट्रंप इज बैक नाउ एंड अमरीका इज सेफ नाउ। वेख तू, मैं अमरीका नू वड्डी सेफ च रख के ते मैं इहो जिहा ताला लाउणा ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਮਫੂਜ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਮਫੂਜ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਓ ਜਾਨ ਜਾਨ, ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇ ओ जान जान। सर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? पहले भी अमेरिका ठीक ही चल रहा था। ओ नहीं पुत, तेनू नहीं पता, ये हुण मैं दसना अमरीका किवें ठीक चलाईदा। अच्छा, ये पिछलियां हुकूमतां ते अमरीका इंज चलाया जिवें आ तुहाडे मुल्क च ड्राइवर रक्शा नहीं चलाउंदे। ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਗਏ ਨਸੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਚਾਮ ਚੜਿਕਾਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਮ ਚੜਿਕ ਚੰਬੜੀ ਆ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਭਾ ਬਾਮਾ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਭਾ ਬਾਮਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਣ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ 'ਚ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਲਿਬੜਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਂਦ ਹੀ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਗਲ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਡੱਬੀਆਂ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਕੁ ਡੱਬੀਆਂ ਮਾਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਕੁ ਦਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। क्यों सर, ये व्हाइट हाउस के गिराज के साथ स्टेशनरी की दुकान बनानी है? ਪੁੱਤ ਜਿੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਾ ਵੇਖ ਤੂੰ। सर आपने तो आते के साथ ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की लाइन लगा दी है। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ। सर आपने तो आते के साथ ही ऐसी थरथल्ली मचा दी है कि ना पूछे। यानी आपने कनाडा के हवाले से ऐसे जारहाना बयानात जारी किए। और तो और आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनाडा को अमेरिका में जम किया हुआ नक्शा जारी कर दिया। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟਾ ਖੋਲਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪੁੱਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟੇ ਖਿਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ट्रंप है। लेकिन सर आपने भी एक आजाद मुल्क यानी कनाडा के बारे में सीधा ही कह दिया कि उसे अमेरिका की रियासत होना चाहिए। ਹਾਏ ਉਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਚ ਹਰਜੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਫਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ, ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੋਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਾਕਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੌਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਸਾਲਣ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯਮ ਹੋਣ 'ਚ ਹਰਜੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਰੇ ਡੇਵਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤ। चलो खाजे दा गवाह डड्डू। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਆ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਚੰਗਾ ਰਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, नहीं तो फिर साढ़े पैरों थले आ जाएगा। ओहो, बड़ी आस थी मुझे अदालत से। पुत तेरियां सारियां आसां ते ओस पै जानियां, ओस जिन्नी ओस तुहाडियां आसां ते पैण डई है ना, इन्नी किधरे तुहाडे ते पै जावे ते शायद उसे चक्कर च ना लवे तू। हुण अदालतां अदूलतां दे आर्डर नहीं चलने, हुण मेरे एग्जैक्टिव आर्डर चलने आ। ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਆ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਬਲਿਕ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪੁੱਤ। कोई नहीं मिलना चाहते वो तुमसे, वो अंदर से तुमसे नफरत करते हैं। ਲੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਆ। सर क्या बात कर रहे हैं, कनाडा के सबसे बड़े सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने आपकी इस बात का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि आपकी 2 रियासतें अलास्का और मिनीसोटा का वो खरीदना चाहते हैं। शाबाशी, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਛਾਬੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੇਲ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ। ਪੁੱਤੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਆਉਣਾ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। यस, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ? ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰ ਜੀ ਆਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ? सर कनाडा, चीन, रूस वाले सारे बयान जारी कर दिए गुड। धमकियां में इस बयान दुनिया भर में मालियाती इदारों की कलमबाजियां लगवा दी हैं। वाओ वाओ, ਇਹ ਜਾਵਾਂ शट अप, तू ਐਵੇਂ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੈਲਸ ਨਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਟਰੰਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਹਿਣਾ। ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੰਪੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਜੇ ਡੱਡਾ ਜਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਈਕਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਮੁਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਏ? ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਗੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੂਮਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਆ। हद हो गई है वैसे। देखा फरीद, कितना ओवर म्यूजिक ले आया अपनी हुकूमत में। जब मेरी हुकूमत थी इतना सुकून था, सॉफ्ट म्यूजिक चलता था। वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, वो जरा सी बात पे। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਲੋ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਲਫਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਅਲਫਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ। हेलो सर। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਿੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਇਧਰ ਆਓ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਲੀਮ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ WWE ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਲੀਮ ਲਾਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਬੈਗੀ ਹੁਣ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇੰਜ ਮਕਾਉਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ। यानी खत्म शुद्ध। सर मैं नई तालीमी पॉलिसी बना रही हूँ, सोचा आपसे गाइडलाइन ले लूं। ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਲਿੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ ਪੋਲਿਸੀ, ਬਸ ਫਿੱਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੜ ਚੜਦੀ ਆ। oh yes, ਬਸ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਪੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। अच्छा, ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब देखना तुसी फरीद साहब,
ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਲ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਾਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਸਦਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਗਦ ਲਈ ਆ। ਬੱਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਏ ਵੇਖੀ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਟੈਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਪਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਵੋ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਰਵੋ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। लेकिन सर खड़े तो हम भी हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਲਵਾਂ। ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ। सॉरी सर सॉरी। ਆ ਮਰਾਦ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਡ ਨਾ ਬਣ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਖੱਲੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਤਲ ਤੇ ਮੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਜਾਓ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਵੀ ਮੰਗਾਈ। ਗਮਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੂਣ ਤੇ ਬੋਤਲ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੂਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। मिस्टर ट्रंप इनको छोड़ें, मेरे सवालात का जवाब दें। तारकीन वतन के हवाले से आपके इक़दामात ने एक नई बहस छेड़ दी है। ये सर जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। अमेरिका तो है ही तारकीन वतन का मुल्क। एग्जैक्टली। मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं? हाय ਆ ਤਾਰਕੀਨੇ ਵਤਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਇਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵੋ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੋ ਇਹਦੇ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। हाय सर भाई बड़ा ही जालिम बंदा है। तौबा तौबा तौबा, बड़ा ही जालिम बंदा है। इन्नी ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣੇ ਆ। एग्जैक्टली। साथी मुझे मिल गया, साथी मुझे मिल गया। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਸਾਥੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਪਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤਨਕੀਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। सर आपको अंदाजा नहीं है आपके फैसलों से कितनी महंगाई बढ़ गई है। हर चीज का रेट 3-3 गुना बढ़ गया है। सही कह रही है बेचारी। अंडे हफ्ता पहले $4 के दर्जन थे, अब $14 के दर्जन है। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦ? तो मैं ना खावा अंडे, मैं सुखी डब्बे रोटी खाई जावा। ਏਡਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਕਰ। ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। यार डबल रोटी भी बड़ी महंगी हो गई है। पहले मैं 3 डबल रोटियों का नाश्ता करता था, अब आधी डबल रोटी खानी पड़ रही है। सर हमें मुल्क बदर ना करें। ਕਿਉਂ ਜੀ? फरीद, मैंने अपने दौरे इख्तिदार में किसी को तंग नहीं किया। हालांकि मेरे घर के सामने ही चुगियां सी। एक दफा, सिर्फ एक दफा मैं ताड़ी भरजाई दे कहण ते उन्हां नूं जाके कहा कि चुको तो चुगियां। वो चुगी सी माई बाबा, वो बाबे ने तो मेरे ते चाह ही डोलती। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ नो प्रॉब्लम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। सर प्लीज मुझे एजुकेशन के बारे में कोई पॉलिसी बताएं। ਉਹ ਆਪਾ ਲਿੰਡਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ट्रंपू ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀ ਜਾਓ। सर मुझे भी वो रूस के सदर प्यूटन के साथ मुलाकात की हिदायत जारी कर दें। ਉਹ ਪੁੱਤ ਪਿਊਟਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਵਾ ਲਵੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਵੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋਟਵਾਂ ਸਾਗ ਬਣਵਾਓ। ਕਿਸੇ ਤਗੜੀ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਓ। ਇਹ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਲਕਾਤ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਣਾਣੇ ਆ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮੌਜ ਕਰਿਓ ਯੂਕਰੇਨ ਬੜਾ ਲੈਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਵੇ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤਬਰੀ ਜੀ ਨਾ ਮਰਾਦ ਅਸਲਾ दे दबो कोई नहीं असला दौड़ जाबो इथों तो सर यूं कहें ना कि आपकी पहले दिन से ही यूक्रेन के मादनियात और जमीन में छुपे खजानों पर नजर थी। एग्जैक्टली ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਰਲੇ ਆ सर प्लीज हमें ना निकालें। ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੌਰਾ ਵਾਂ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਫੂੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ सर हम कहाँ जाएंगे? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ प्लीज प्लीज सर को तंग मत करें, सर की पहले ही तबीयत खराब है। ਉਹ ਛੋਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ ਆ ਸਦਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ गो 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 अल्लाह का वास्ते ही गो। ਬਸ ਕਰਦੇ ਗੱਬਰ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा ट्रंप तेनू अल्लाह ही पूछे सानू कटेगा ना तो तेनू अल्लाह पूछेगा एडी मुश्किलां नाल इत्थे घर बनाया सी ते सानू कटन टुरिया है जे असीं जावांगे ना तो 4 साल तुम ही नहीं पूरे करने 4 साल पूरे नहीं करने ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੰਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 4 ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इसी सिलसिले में ये इटली वालों ने जेल में एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोगों से मेहनत करवा रहे हैं। वैसे अजीजी साहब जेल में रेस्टोरेंट का कोई तुक तो नहीं बनता? वैसे मेरा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो ऊपर से एंकर के साथ तुम्हारी कुर्सी है तो छोटा जिया नक जी अजीजी क्या खबर लेकर आए हो आज? नाज़रीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर लेके आया है वो ऐसी खबर है कि सुनते ही यहाँ पूरे सेट के ऊपर थरथल्ली पड़ गई। यार खबर सुनाओ, तुम खबर सुनाने से पहले ही थरथल्ली मचा देते हो। आई एम सॉरी फरीद खबर कि तुम्हारी रोक टोक न्यूज़ जेम्स बॉन्ड को ले दे गई है। असल में कॉलेज के दौर में जेम्स बॉन्ड को डांस का बहुत शौक था। यार ये डांस नहीं है ये थरथल्ली है। कभी तुम्हें याद नहीं छोटे होते थे जब तो वो चूहा पटाखा चलाते थे वो चूहा पटाखा शलवार में घुस जाता था तो थरथल्ली पड़ जाती थी वो होती है थरथल्ली। अजीजी मुझे तो जब भी थरथल्ली पड़ी है मैं स्लिप हो जाता हूँ। तुम्हारी थरथल्ली नहीं होती तुम्हारा थरथल्ला होता है। लो जी जरा सुने खबर किधर गई वो खबर तो इतनी सी किधर गई है वो थरथल्ली में खो गई कहीं। ये है आई एम सॉरी मैंने समझा शायद किसी दुश्मन ने बीच में से थरथल्ली निकाल दी है। अजी खबर है कि इटली की एक जेल में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी कायम है जहां सारा अमला जेल के कैदियों पर मुश्तमिल है और कैदी मुलाजम माहाना 1300 से 2400 यूरो यानी 4.25 से 7 लाख रुपए कमाते हैं। नहीं अजीजी प्लीज मुझे गिरफ्तार करवा दो। ओ भाई जी ये इटली की जेल में हो रहा है। अजीजी फौरन मुझे इटली का वीजा ले दो। आप भाई वीजा नहीं जाएंगे आप कार्गो के जरिए जाएंगे। यार 4 लाख से 7 लाख रुपए वो भी जेल में? यस जेल में एक रेस्टोरेंट बनाया उन्होंने अच्छा जिसमें कैदी सारे काम कर रहे हैं और वो उनको उनके काम का उनकी मेहनत का मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा देखो ना जरा कितनी खूबसूरत बात है। और आप ये सुन के भी हैरान होंगे बल्कि परेशान भी होंगे कि ये लोग जो है ना जी ये इसलिए इस तरह के काम करते हैं कि जो क्रिमिनल जेल में आए हैं या कोई गलत कार्य करके जो जेल में घुसे हुए लोग हैं वो अगर जेल में सुधर भी जाते हैं
तो बाहर जाके सिर्फ गुर्बत की वजह से या पैसा ना होने की वजह से दोबारा गलत काम में ना पड़ जाए। सही बात है। इसलिए जेल में इस तरह के बंदोबस्त करते हैं कि उनका 4 पैसे बन जाएं और वो पैसे लेके घर जाएं जब 4-5 साल 10 साल अपनी कैद काट के, तो बाहर जाके वो कोई शरीफाना जिंदगी बसर कर सके, उनके पास पैसे हों। सही। वैसे तो आप ये सुन के भी खुश होंगे कि ये काम हमारे पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, होना जी गिरफ्तार। नहीं, वो तो मैंने इटली की सैलरी सुन के फरमाइश की थी। नहीं, सैलरी तो खैर इधर के मुताबिक ठीक है, मगर अल्लाह ताला आपको हफाजत में रखे, इस तरह की सोच से भी अल्लाह दूर रखे। सही बात। बात यह है कि जो हो जाता है गिरफ्तार, जिससे कोई खुदा ना खास्ता कोई वारदात हो जाती है या कोई कर बैठता है, तो उसको जब जेल में जाके अगर उसकी तरबियत की जाए, ऐसे मैंने 2-3 दफा ये बताया कि कनाडा में तो जेल जो है उसका नाम जेल है ही नहीं, सही बात। करेक्शन सेंटर है, सही वहां पे लोगों की करेक्शन की जाती है। सही। इसी सिलसिले में ये इटली वालों ने जेल में एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहां पे वो लोगों से मेहनत करवा रहे हैं। वैसे अजीजी साहब, जेल में रेस्टोरेंट का कोई तुक तो नहीं बनता? वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ऊपर से एंकर के साथ तुम्हारी कुर्सी है, तो छोटा जिहा नक, समझ तो तुम्हारी आप ही खराब होनी। ओ यार बताओ। यस, कम टू द पॉइंट। ये जेल जो है ये इटली के शहर मिलान में है, जहां की एक शॉपिंग स्ट्रीट है जिसने हाल ही में न्यूयॉर्क के अपर 5th एवेन्यू को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे महंगे एवेन्यू का एजाज अपने नाम किया। अच्छा, इस रेस्टोरेंट का नाम है इन गालीरा, जिसका मतलब होता है जेल में या जेल के अंदर। और जेल में रेस्टोरेंट कैदियों को सुधारने का एक तरीका है। हाँ। और ये रेस्टोरेंट 2015 से यानी 10 साल से चल रहा है। अच्छा, वैसे तो यहाँ इस रेस्टोरेंट में हर कोई आ सकता है, लेकिन ज्यादा तादाद उन मुखय्यर अफराद की है जो जेल को चंदा भी देते हैं। कैदी हर तरह की सर्विस देते हैं, लेकिन वो लोगों को ये नहीं बताते कि वो किस जुर्म में जेल आए हुए हैं या उनको कितनी सजा हुई हुई। ये ना वे बंदा डिश अगे रखदा कहे जी मैं कतल च अंदर होया, जेड़ा बेचारा रोटी खान आया वो इंज करे तो सारा मेज ही उल्ट जाए, या कोल्ड ड्रिंक रखते हुए कहे कि मलकां दे 6 बंदे मैं ही मारे सन, ते बोतल आप ही उबल के सारी गाहक ते पै जाए। इसी तरह बाकी दुनिया में भी जेलों का कॉन्सेप्ट तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान की जेलों में जो मुस्बत तब्दीलियां हो रही हैं उनका तो हम सबको पता है, पहले भी हमने एक दफा जिक्र किया था। लेकिन अभी एक जो ताज़ा तब्दीली की गई है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेलों में कैद अफराद के लिए हुनरमंदी और रोजगारी की सहूलतें बढ़ाने का ऐलान किया। इसी मंसूबे के तहत पंजाब जेल खाना जात के आईजी जो हैं मियां फारूक नजीर, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। देखो ना ये रखी कमाल होएगा कि जेल च जुतियां बना रहे हैं तड़ा, और उत जाने ले हर एक को एक जोड़ा मिले। हाय 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 हाय। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि जब बंदा बाहर जाए तो उसको एक हुनर भी आ गया हो। सही बात है। और वो अपना रोजगार भी कमा सके। बिल्कुल सही। और फिर कसूर के बाद पंजाब की 4 मजीद जेलों में लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और फैसलाबाद में भी इसी तर्ज पर जूते बनाने की फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। और ये भी आप सुन के मजा लेंगे कि इसमें जो मशीनरी है ना, वो शू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कसूर के ताउन से फराहम की गई। गोगे छोड़ो यार इटली की जेल को, कसूर की जेल में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारे दोस्त ऑलरेडी उधर कैद काट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ फैसलाबाद वाली जेल ठीक है, क्योंकि इसका वो आबाई शहर भी है। और मनुसो उनकी बात सुनो। यानी देखो दाद नहीं दे रहे पंजाब हुकूमत नूं, ओनू कैद कराने दे चक्कर च पै। गोगे जी सर, करो इनकी ख्वाहिश पूरी, मैं रोटी देने आया करूं। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं। अच्छा, सिर्फ जेलों में ही तब्दीली नहीं आ रही, थानों में भी इस कदर दिलचस्प तब्दीली आ रही है कि आप मैया लेंगे। अच्छा। हमारे लाहौर के मॉडल टाउन थाने में एक पब्लिक कैफे बन गया है। अच्छा। और आप यकीन माने कि वो पब्लिक कैफे जो बना हुआ है, कैफेटेरिया,
वो ऐसा खूबसूरत और मॉडर्न बना है कि पूरे मॉडल टाउन में क्या पूरे लाहौर में उसका चर्चा हुआ है। क्या बात है। हाँ हाँ, देखे ना जरा थाने का इमेज बदलने के लिए कितनी अच्छी बात है कि आप थाने में जाके कह रहे हैं कि कैपुचिनो के 2 कप। वरना थाने में आप ऐसे कर सकते थे पहले? नहीं। या कैपुचिनो कह सकते थे? नहीं। और नहीं 2 वालदार ने लमिया पाके तो कैपो फड़ के तो चीज कर। नसरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यार मेरे साथ बहस ना प्लीज। भाई बहस ना करो, हेलमेट के बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं हेलमेट के। असलम साहब, मैंने एक बंदे का 10,000 रुपया देना था, मैं हेलमेट पहन के उसके पास से निकल जाता था। यार मैं कानून की बात कर रहा हूँ, अपने फड़ाडों की बात सुना। अच्छा जी, मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने की वजह से ट्रैफिक पुलिस धड़ाधड़ चालान कर रही है और लोग इस पर शोर ये मचा रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें इस बारे में मालूमात ही नहीं थी, तो हमारा चालान क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा फरीद साहब, हमने सीटीओ साहब के हुक्म पे हमने पूरा 1 हफ्ता लाहौर की सड़कों के ऊपर आगाही मुहिम चलाई है। अच्छा, लोगों को बताने के लिए ठीक। कि अब सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट नहीं पहनेगा, जो उसके साथ दूसरा बंदा बैठेगा मोटरसाइकिल पे, 2 बंदे अलाउ होते हैं ना, जी जी, जो दूसरा बैठेगा वो बेशक मर्द हो या वो औरत हो, उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। अच्छा सर खातून भी हेलमेट पहनेगी? खातून भी हेलमेट पहनेगी? तो आप इस तरह हैरान हो रहे हैं जैसे खातून का सर नहीं होता। अरे सर, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, अमूमन हमारे यहाँ खवातीन में हेलमेट पहनने का रुझान ही नहीं उनमें पाया जाता। यार हमारे यहाँ तो और भी बहुत से रुझान नहीं पाए जाते, मगर खुदा के वास्ते बस कर दे यार। 77 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, जी हम आज तक ट्रैफिक की तमीज भी नहीं सीख पाए। जरा सी सख्ती करते हैं तो लोग इतने लाडले हैं कि वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। सही बात है, हम अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। जब आपकी जान की हिफाजत करने के लिए हम कह रहे हैं तो खुदा के वास्ते बात समझने की कोशिश करें। जब आप हेलमेट पहनने बगैर आप बैठते हैं मोटरसाइकिल पे तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मोटरसाइकिल आपका स्लिप हो जाता है या आप गिर जाते हैं तो आपके सर को अगर चोट आ जाए, सड़क पे लग गई या फुटपाथ के साथ लगे आपका सर, तो डेथ हो जाती है यार। खुदा के वास्ते हेलमेट पहन के अपनी जान को महफूज बनाएं। सर हमारे यहाँ तो वो एक मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 लोग बैठ के जा रहे होते हैं, तो वो भी पहनेंगे हेलमेट? ये तो गलत है। पहला चालान तो उनका ये बनता है कि आप 2 से ज्यादा बैठे क्यों हैं। फिर दूसरा चालान डेफिनेट हेलमेट ना पहनने का होगा। फरीद साहब प्लीज अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे जो व्हीकल्स की तादाद है ना लाहौर में, जी सर, 80 लाख है, उसमें 53% आई मीन 53% जो है वो मोटरसाइकिल है। अब हमारी सख्ती करने की वजह से 26% कमी आई है हादसात में। वाह। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 50% पे हम इस रेशो को लेके आए। बहुत अच्छी बात है। किसी का लिहाज नहीं होगा। हमने आगाही मुहिम शुरू की हुई है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक के बाद जो दूसरा बंदा बैठता है, दोनों जो बैठे हुए हैं हेलमेट पहन कर निकलेंगे। अगर पिछले बंदे ने भी या औरत ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो हम चालान करेंगे। सर हम तो पूरा हफ्ता रोड पे निकले ही नहीं है, हमें क्या पता आगाही मुहिम का। बहुत अच्छे, आप क्यों नहीं निकले सड़क पे? आपके घर में सब्जी की बारिश होती है? आप सौदा शलफ लेने के लिए बाहर नहीं निकलते? अगर आप नहीं निकलते तो आप टीवी देखें। भाई साहब, ना हमारे घर टीवी है ना हमारे घर में अखबार आता है, तो कहाँ से मुहिम का हमें पता चलेगा? सोशल मीडिया चेक करें। सोशल मीडिया पे भी हम चीखो पुकार कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, हेलमेट पहने, दोनों हेलमेट पहने जो सड़क के ऊपर हैं। और भाई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता वो क्या करे? ऐनक की सूरज जल वेख वेख के लग गई है। तो ऐनक से पता चल रहा है कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये सब बहाने हैं, डगोसले हैं। बिल्कुल, ये सब गलत बात है। सारे लोग अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मैं तो मोबाइल पे सिर्फ खाना बनाने वाली वीडियो देखती हूँ। खाना बनाने के साथ साथ हमारी भी वीडियो उसी में होती हैं।
आपका जो मोबाइल है उस पर कोई छाननी या पोनी नहीं लगी हुई जो आपको सिर्फ खाना बनाने के तरीके पोन के दिखा देती। आप जब मोबाइल चेक काटे होते हैं तो उसमें हमारी भी वीडियोस आती हैं। सही बात। तो सर आप भी तो गलत कर रहे हैं ना, एक लड़की कैसे हेलमेट पहनेगी, मेकअप खराब हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे। लो। आपका मेकअप आपकी जान से ज्यादा कीमती है। और भाई साहब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था ना, मैंने हेलमेट पहना हुआ था। यार आपने पहना हुआ है ना, तो हमारी जो बहन पीछे बैठी हुई थी, अगर आप गिरेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, अगर आप गिरेंगे तो वो भी तो पीछे से गिरेंगी, या उन्होंने सीट के ऊपर शरेश लगाई हुई है। इसकी आई मुझे आ जाए, ये कैसे गिरेगी, मैं पहले गिरूंगा फिर ये गिरेगी। इतनी उनके साथ मोहब्बत करते हो तो उनकी जान का भी ख्याल करो ना, हिफाजत करो उनकी। बिल्कुल। हम तो खुद आपसे मोहब्बत करते हैं, आप लोगों से। आप हमारे बहन भाई मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं, हमारे जो सीटीओ साहब हैं अटल वाइट साहब, उन्होंने कहा देखो असलम, अगर किसी का तुमने चालान छोड़ा तो मैंने तुमको नहीं छोड़ना, इसलिए मैं तो चालान आपका नहीं छोड़ूंगा। मेरी 3 साल की बच्ची है सर, कल को आप कहेंगे कि इसे भी हेलमेट पहना दो। मैं कल को नहीं कहूंगा, मैं आज ही कह रहा हूँ। वो भी हेलमेट पहनेगी। अगर मोटरसाइकिल पे बैठेगी तो वो भी हेलमेट पहनेगी। हाँ, इतनी सी बच्ची अब हेलमेट पहनेगी। हाँ, इतनी सी बच्ची भी पहनेगी, ये नहीं इतना सा पहन रहा। यार मैंने अक्सर देखा है मोटरसाइकिलों पे 5-5, 6-6 बच्चे बैठे, तो क्या सब हेलमेट पहनेंगे? पहली बात तो ये कि गलत बात है ये। आप 5-6 बच्चे नहीं बिठा सकते मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल के ऊपर सिर्फ 2 सवारियां अलाउ हैं। जो दूसरा बैठेगा वो हेलमेट। यार मेरे साथ बहस ना प्लीज भाई, बहस ना करो। हेलमेट के बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं हेलमेट के। असलम साहब, मैंने एक बंदे का 10,000 रुपया देना था, मैं हेलमेट पहन के उसके पास से निकल जाता था। यार मैं कानून की बात कर रहा हूँ, अपने फड़ाडों की बात सुना। बस सर अपना अपना तजुर्बा है ना, गौरी का अपना तजुर्बा है। मैं आपको देखे मेरे साथ बहस ना करें, मैं पहले ही बड़ा जला बुना हूँ। आई एम सॉरी गौरी, आई एम सॉरी। मैं जला बुना हुआ हूँ इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात। ओहो, कुछ तो सोचें, औरत कैसे हेलमेट पहनेगी? ये हेलमेट है या मूछी है? तो सोचें कि किस तरह औरत रख लेगी। ये हेलमेट है बीबी, ये सर पे रखना है, ये मूछे नहीं है जो इधर रखनी है। खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें। आप हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हम आपकी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है। तो आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि सिर्फ 2 लोग बैठेंगे मोटरसाइकिल पे, तो अपने बच्चे क्या हम आपके पास छोड़ दें? दे जवाब। जम्मे तुसी होए ने साडे कोल कढ ली उन्हें संभालो। जब आपको पता है कि सवारियां ज्यादा हैं तो मत बैठे मोटरसाइकिल पे। यानी कि अब डेली शॉपिंग के लिए जाओ तो रोजाना एक नया हेलमेट भी लेकर आओ। यार शॉपिंग के लिए आपने साड़ियों को, बच्चियों को भी साथ लेके जाना होता है। आप 2 जने अगर जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, हेलमेट पहने। That's it। अगर हेलमेट लेने तो फिर उनके साइज की तो लेने पड़ेंगे ना, साथ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे साइज के भी होते हैं हेलमेट। सारी दुनिया में होते हैं। सारी दुनिया में बच्चे भी हेलमेट पहन के। परेड साहब यकीन माने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बाहर के ममालिक में जो बच्चा आगे उन्होंने बिठाया होता है ना जी टंकी के ऊपर, या वेस्पे वालों ने आगे खड़ा किया होता है, बिल्कुल उस बच्चे ने भी छोटा सा हेलमेट पहना होता है। क्या बात है। जितना ये लेनो वाला खरबूजा नहीं होता, जी जी, बिल्कुल इतना हेलमेट मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाह वाह। असलम साहब ये सारे बहाने, मुझे छोटे से छोटा हेलमेट भी खुला होता है लेकिन मैं फिर भी पहनता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने पहनना हो विच पटावा रख लो। वो एक दफा जूता खुला होता है तो उसमें पटावा रख के उसे पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल। मगर ये बात अब 100% पक्की है कि हमने हेलमेट के बगैर बंदा बैठा हुआ मोटरसाइकिल पे छोड़ना नहीं है। असलम साहब सख्ती जरूर करें लेकिन शहरियों के साथ बदतमीजी ना करें। अभी एक हाल ही में आप लोगों ने वाकया सुना होगा कि एक ट्रैफिक वार्डन ने सड़क किनारे शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो आपको पता है उस वार्डन के साथ हुआ क्या है? सीटीओ साहब ने उसको बुला के मुअत्तल कर दिया।
मोटर काटने ना कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी सख्त बेइज्जती होती है अहल कार्ड की। सही बात। मोटर करना ऐसे होता है जैसे आपको बीवी घर से निकाल दे और दाएं बाएं के हम साए पूछ रहे हो। ये गल है, अंदर नहीं जाड़िया बाहर ही फेर रहे हैं। और जो जिसके साथ उसने बदतमीजी की थी उनको बुला के सीटीओ साहब ने सॉरी भी की है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये भी 60-60 जारी है जी हाँ, कि सिर्फ कानून पे अमलदारी करनी है, बदतमीजी नहीं करनी। अच्छी बात। देखिए ना गुस्सा कहां से चढ़ता है जी कि हम कानून बता रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे। अब इसका क्या हल है? आप मुझे बता दें, आप बता दें। चले सर, इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ एक हल है, चालान करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल ना छोड़ें जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो चलाने की यार तो देखे ना जरा किस तरह लड़ रहे हैं। चलान क्यों कर रहे हैं आप? मैं उसको हेलमेट दिलाने ही तो जा रहा था। ये देखे जरा ईमान से ये इतना चालाक बंदा है कि जब मैंने इसको रोका है ना कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो कहता है जी वो एकदम कोई फौतगी का फोन आया था तो हम जल्दी में अफसरदा निकले थे इसलिए भूल गए। अच्छा, जब थोड़ी देर और मैंने बहस की उसके बाद बात पलट दी। कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम हेलमेट नहीं पहने। फिर थोड़ी सी बहस हुई है तो वो बहन हमारी कह रही है कि प्लीज हमें जाने दें, हमने सौदा लेके घर पहुंचना है। मैं क्या वो कह रहे हैं फौतगी हो गई है सौदा लेने, आप वो मुर्दे के पास जा रहे हैं। कहते हैं नहीं वो तो एक फौतगी भी हुई है, उधर भी जाना है हमने। अच्छा, मैं कहा जा आप फौतगी पे रहे हैं, मेकअप आपने वलीमे पे जाने वाला किया हुआ है। तो आगे से कहती हैं कि मेकअप तो जरूरी है, तो मैंने कहा फिर हेलमेट भी जरूरी है। और देखे अब ये कह रहे हैं कि मैं बीवी को हेलमेट दिलाने जा रहा हूँ। देखे जरा, हर बात इनकी फौरन बदलती जाती है, बदलती जाती है, बदलती जाती है। चले जाने दे सर, अब चलान तो ना करें, एक दफा माफी दे दें। नो असलम साहब, मैं जब भी मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलूं, आपकी भाभी पहले हेलमेट लेके बाहर खड़ी होती है। उसको हेलमेट नहीं कहना आता, वो कहती ये अपनी खोपड़ी ले जाएं। हेलमेट उनको कहना आता है, असल में वो ये कहना चाहती हैं कि आपकी सारी अक्ल हेलमेट में है, दिमाग में नहीं है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, भाभी को भी हेलमेट ले दें। वो आपको कहे कि ये अपनी खोपड़ी पकड़े, आप उनको कहें कि ये आप अपनी खोपड़ी पकड़े। मगर असलम साहब, लोग तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, यहाँ एक हेलमेट नहीं खरीदा जाता, 2-2, 3-3 हेलमेट कैसे खरीदें? सर ये भी बहाने हैं, हेलमेट कौन सा 2.25 लाख काट है। ये लोग बच्चों को साल लेके जाकर तो 3-3, 4-4 हजार रुपए की एक टाइम पे रोटी बर्गर और पिज्जे खा जाते हैं। तो ये लोग अपनी जान की हिफाजत नहीं कर सकते। पहले जान की ख्याल करना चाहिए, फिर दूसरी चीजों की तरफ देखें। बिल्कुल बिल्कुल। असलम साहब, मैं बाहर किसी मुल्क में जाता हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है वहाँ। बनती है। और नहीं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल कोई चलाता ही नहीं है। और हम यहाँ कितने सालों से इस बात को समझ ही नहीं रहे। तो और क्या, आप देखें जरा, सिर्फ जनवरी के महीने में जो हेलमेट की खिलाफ वर्जी की है ना लोगों ने, उस वजह से 60,000 चालान हुए हैं। 60,000। अब देखे ना, पाकिस्तान का सबसे एडवांस शहर है ये लाहौर, कराची। अगर इन शहरों में 60,000 बंदा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो बाकी छोटे शहरों में क्या हाल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले परवेज, दें इनको 100-200 और जान छुड़वाएं। ये देखें जरा 100-200 दे, बहन मुझे स्कूले छोड़ने आए हुए हैं आप। हम अल्लाह के फजल से एक पैसा नहीं लेते। मैं कसम उठा सकता हूं, मैंने कभी एक पैसा भी नहीं किसी से रिश्वत ली। मैं कानून की अमलदारी कराऊंगा और करा के रहूंगा, दैट्स इट। वेल डन। चले हम जूस पीने जा रहे थे, वो तो चल के पी लें हमारे साथ। जेड़ा फौत होया उन्हें जूस वाली रेड़ी लाई हुई। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा मुजफ्फर, तुम बताओ तुम क्या करते हो? ये गुस्से से उड़ के दरख्त पे बैठ जाते हैं और तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला अलहदा बनाना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, घरों में हल्के फुल्के झगड़े या छोटी मोटी जो नोक झोंक है वो तो होती रहती है, मामूल की बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल। लेकिन कभी कभार ये झगड़े इस हद तक तूल पकड़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। और आजकल तो आप लोग जानते हैं कि जो तलाक की रेशियो है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मैं ये सोचता हूं कि यार पहले भी इस तरह के छोटे मोटे लोगों के आपस में झगड़े होते होंगे, जी जी। यानी नोक झोंक होती होगी, हाँ जी। तो वो इन मामलात को कैसे हैंडल करते होंगे, कैसे डील करते होंगे, क्योंकि पहले तलाक की रेशो इतनी नहीं थी। यार मैं तो एक दो दफा पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ, जो मेरी अपनी सोच है। हाँ, जी जो रब की मोहब्बत है ना जी, अल्लाह पाक के साथ जो एक जुड़ाव है, जी। रब के साथ जुड़ के रहना जो है, वो आपके अंदर सब्र और शुक्र पैदा करता है। बिल्कुल सही। हम लोग चूंकि रब से दूर हुए हुए हैं, सच्ची बात है। हाय हाय। ये आप देखें ना कि मैं पहले कई दफा ऐसी बातें बता चुका हूँ या याद कर चुका हूँ, बताना क्या है, सबको पता है जी कि जब हम छोटे छोटे थे तो सारे बच्चे सुबह सुबह उठ के स्कूल से पहले मस्जिदों में जाते थे। जी बिल्कुल। बिल्कुल। वो मैंने उसकी निशानी भी बताई कि छोटे छोटे सर और ऊपर बड़ी बड़ी टोपियां। हाय हाय। तो ऐसे बच्चे भागते जाते थे, टोपी उते हिल रही होती। सही बात है। ये नज़ारा आज भी मेरे जहन में है, आंखों के सामने है। जी। तो वो एक जो अल्लाह के साथ निस्बत जुड़ी होती थी ना जी लोगों की, जी जो मजहब के साथ जुड़े होते थे लोग, उससे इंसान के अंदर सब्र और शुक्र पैदा होता था। जी सही। तो जहां भी कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लड़ाई झगड़े की, जी जी। किसी जगह भी, आप देखें कि उसमें अगर आप सब्र कर जाएं तो वो झगड़ा खत्म हो जाता है। सही बात है। बिल्कुल सही। खत्म हो जाता है ना जी। ये गुस्सा पी जाना क्या है? सब्र। सबर सही बिल्कुल। बात। हाँ जी। ठीक है ना जी, सब्र कर जाएं, चुप कर जाएं। तो वो अब चूंकि सब्र नहीं रहा, शुक्र नहीं रहा, हम छोटी छोटी बातों पे जो है वो ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि अगर कोई तीसरा बंदा जो बिल्कुल उस वक्त ठंडे मिजाज में बैठा हुआ है, जी वो अगर देखे तो वो हंसना शुरू कर दे कि ये किस बात पे लड़ रहे हैं, हाँ। ये कौन सी ऐसी लड़ने वाली बात है। सही बात है। तो मेरा तो अपना ये ख्याल है, अगो तो ही इन्हों को पूछ लो। अच्छा चलो थैले, आप बताओ, आपका भाभी के साथ अगर कोई मामूली झगड़ा, कोई नोक झोंक हो जाए तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हो? उच्ची उच्ची रोन लग पैंदा है। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਘਬਰਾ के माफी मांग लेंदी। तो यार मैंने थैले से पूछा है, तुम बताना शुरू हो गए। चलो चलो पूछे। वैसे थैले को तो मुश्किल होती होगी हैंडल करने में, क्योंकि इनका कद छोटा है थोड़ा। यार पहले तो मेरे घर में झगड़ा होता नहीं, अगर हो जाए तो मैं उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। पक्की बात है। यानी खामोश हो जाती है। जी बिल्कुल। हाय 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 हाय, वालदा मोहतरमा मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो अक्सर बच्चों को कहती थी, एक चुप ते 100 सुख। 100 सुख। वाह। वैसे ये जो अपना थैला साहब ने बयान दिया है ना जी, ये 100% गलत है। दो दफा ऐसा हुआ है कि मैं इनके घर गया हूं तो इनके नथने फूले हुए थे और सख्त गुस्से में ऊंची ऊंची बोल रहे थे, और परजाई बेचारी इस तरह घबरा के बैठी हुई थी जिस तरह मौला जट चनूरी आए तो पिंड वाले नहीं घबरा जाते। यार हमारा पत्नी स्टार ऐसा है, ऊंचा तो हम लाजमी बोलते हैं, ये बात तो आपकी सही है कि वो फिर हो तो वो भी चुप जाते हैं, फिर बाद में हमें भी एहसास होता है कि हम नहीं बोले। तो ये ना कहो कि मैं उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक उनको गलती का एहसास ना नहीं, हो। वो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पहले तो मैं बोल चुका होता हूँ ऊंचा। क्यों जी? अच्छा, ऐसा बंदा बोलने से पहले ना पहले ऊंची जगह डिसाइड करता है कि कहाँ खड़े होकर बोलूं जहां मेरी आवाज बुलंद हो। मैं रोशनदान पे चढ़ जाता हूँ कि वहां से बोलूं, ओए! बड़ा मजाइया खामद है ये। अच्छा यार गोगे, तुम बताओ, तुम क्या करते हो जब भाभी के साथ तुम्हारा कोई इस तरह का झगड़ा या कोई नोक झोंक होता है? फ्री साहब, मेरा जब भी झगड़ा होता है मैं फुल साइज पिज्जा लेता हूँ, साथ अपनी बीवी को लेता हूँ और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ। वाह। वाह वाह, और लॉन्ग ड्राइव पे पैदल निकलता ही है। और 2-3 किलोमीटर पे जाके गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये गलत कह रहा है, 2-3 किलोमीटर पे नहीं, 2-3 पिज्जे के पीसों के बाद गुस्सा। और थोड़ी देर बाद फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ पैंदा है, मैं हाले 3 पीस खादे ने, तू 4 क्यों खादे ने। यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो सुलह होती होगी ना। अब बस जब कैचअप खत्म हो जाती सुलह हो जाती।
यानी तुम्हारी लड़ाई और सुलह भी खुराक के जरिए ही है। अजी इसका तो ओढ़ना बिछोना ही खुराक है। अच्छा मुजफ्फर, तुम बताओ तुम क्या करते हो? ये गुस्से से उड़ के दरख्त पे बैठ जाता है और तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला अलहदा बनाना शुरू हो जाता है। और यार थैले मत बोलो, मुजफ्फर बताओ यार। फरीद साहब, अव्वल तो मेरी लड़ाई होती ही नहीं है। अगर कभी हो भी जाए तो वो भी मुझे मारने के लिए बेलन उठाती है तो मैं उसे कह देता हूँ मैनू मारी ना, मैं बेहोश हो जाना ही। तो यार लाफ्टर ना लो, सही बात बताओ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? सर सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी कभी लड़ाई हुई नहीं है। अगर कभी हो भी जाए तो या तो उसे एहसास हो जाता है या फिर मुझे एहसास हो जाता है। वाह वाह जी गौरी साहब, आप कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? सर ये तो शुरू से ही कह देता है हाउ। तो पैंट साड़ी दा डर के हासा निकल जाता है, गुस्सा खत्म। तो यार बता रहे दो उसे। फरीद साहब, वो अब्बू की बात मेरे जहन में है कि अब्बू कहते थे कि लड़ाई करना अक्लमंदी नहीं है, लड़ाई से बचना अक्लमंदी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और जब भी लड़ाई शुरू होती है तो मेरे वो जहन में बात होती है। अच्छा। और मैं रहता हूँ ज्वाइंट फैमिली, मैं रोज या एक दिन छोड़ के किसी की लड़ाई छुड़वाता हूँ, मना करता हूँ, मेरी नहीं होती लड़ाई। वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। वाकई ये मैं गवाह हूँ इस बात का जी जी। कि गौरी अपने घर में इंतहाई सोबर जिंदगी गुजारता है। वाह। ये है तो मजाइया फनकार। ये देखो ना, ये रहा। घर में नहीं ऐसा होता, अच्छा। क्योंकि ये घर का बड़ा है ना जी, जो इसके बड़े भाई हैं वो भी लकीली इसे बड़ा समझते हैं। बड़ी बात, बहुत अच्छी। बहुत हो गए हैं, अल्लाह ताला वो तो कहते हैं उनकी भी लड़ाई छुड़ाता रहा हूँ। क्या बात। ये आप अपने बिहेव की वजह से अपने ख़ानदान के अंदर ऐसी अपनी शख्सियत जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। भाई मेरी ये शख्सियत, सही बात। जैसे अभी थैले को भी हम छेड़ रहे थे, थैला भी अपने फैमिली का बड़ा है। इसको भी मैंने देखा है कि ये भी जब बात कर रहा होता है तो सारे चुप कर जाते हैं। अच्छा, वाह। जी 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 जी, तुसी इहनू टैना जिहा ना समझो। ये पूरा चौधरी जे करदा। वाह जी वाह। आप अपना तो बताओ जीजी, कैसे हैंडल करते हो? नहीं, मैं सीरियसली मैं आपको बताऊं जी। कि मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ। अच्छा। एकदम बड़े गुस्से में आ जाता हूँ। अच्छा। मगर अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि वो ऐसे ही चंद लम्हों का होता है, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का। सही। उसके बाद मुझे रियलाइज हो जाता है कि मैं ये गलत शाउट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी से। मैं फिर रिवर्स गियर लगाता हूँ, सही। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, जिस तरह बंदा एहतियात नाल पीछे जाता है कि हम पीछे जा रहे हैं तो अगला ही ना कुछ कट मारे। उस तरह मैं एहतियात से पीछे हो जाता हूँ, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ कुछ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये सबसे खूबसूरत बात फैमिली के अंदर जुड़े रहने की यही है। हाँ जी बिल्कुल। वो दोनों में होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए कि अगर एक बंदा शाउट कर गया है या अपना टेम्परामेंट लूज कर गया है तो दूसरा फौरन चुप कर जाए। बिल्कुल। अगर वो गुस्से में आ गया है तो वो चुप कर जाए। सही। तो वो ऐसे चंद लम्हों की ही बात होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। क्या बात। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਵਹਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ। हाय हाय। अल्लाह पाक सब घरों को महफूज रखे। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।